Good morning, dear students. How are you all? Hope all of you are done with Unit 7, that is a fair play. Question answers, who said to, meanings, dictation words, everything you have written in your English notebook. Today we will start with our Unit 8, and the Unit 8 is a game of chance. It also has a poem. We'll be completing it in this week till Friday. We'll be doing everything of it. Okay. And today we'll start with the explanation of the chapter. I already explained you students that Game of Chance is a story in which a boy named Rashid goes to the fair along with his uncle and a भैया, and then what happens in the fair with him, मेले में उसके साथ क्या होता है वो हम देखेंगे. ठीक है. So we'll start. We have already done with the introduction, so I'm reading it out. Do pay attention in your textbooks. You can see the given picture in your textbook, and it is a place called as Lucky Shop. It's given. So there is a fair, मतलब मेला लगा हुआ है. It's due to occasion of ईद की वजह से मेला लगा है. ठीक है. So I'm reading the first paragraph. Look at it, look at the image and try to understand what exactly the scenario is. Every year on the occasion of Eid, there was a fair in our village. Eid was celebrated only one day, but the fair lasted many days. Tradesmen from far and wide came there with all kinds of goods. Okay, so what is given in these first 5 lines, that they are describing the fair को describe करे कि मेला क्यों लगता था, कितने दिन लगता था और वहाँ पे कौन कौन आता था. ट्रेड्समैन मतलब शॉपकीपर्स और पीपल हु हैव गुड्स टू सेल, जो बेचने वाले होते हैं उनको ट्रेड्समैन कहा गया है. ओके. तो ये सारे लोग वहाँ पे मेले में आते थे और मेला लगता था ईद की वजह से. और ईद तो एक ही दिन सेलिब्रेट होती थी, लेकिन जो 2 4 5 दिन 2 3 दिन ऐसे जो फेयर था वो बहुत सारे दिन तक चलता था और सब लोग अपनी अपनी चीज़ें बेचने के लिए वहाँ पे आते थे. अंडरस्टूड दीज लाइन्स स्टूडेंट्स. सो द फेयर इज डिस्क्राइब्ड ओवर हियर कि वो क्यों लगता था, कब लगता था, कितने दिन रहता था, कौन आता था. दोज ऑल थिंग्स आर डिस्क्राइब्ड. Tradesmen came to sell. Okay, you could buy anything from a small pin to a big buffalo. तो वहाँ पे आप सब कुछ खरीद सकते हो. फ्रॉम अ स्मॉल पिन, छोटी सी पिन से लेके बड़ा वाला बफेलो भी आप खरीद सकते हो. ओके. सेकेंड पैराग्राफ. Uncle took me to the fair. Bhaiya, who worked for us at home, came with us. There was a big crowd at the fair. Uncle was leading us through the crowd when we met a few of his friends. They wanted हिम टू स्पेंड सम टाइम विद देम. ओके. तो सेकेंड पैराग्राफ में क्या गया है कि अंकल मुझे लेके गए थे वहाँ फेयर पे, और मेरे साथ भैया भी थे जो हमारे घर पे काम करते थे, वो भी हमारे साथ आए थे. और वहाँ मेले में बहुत बड़ा क्राउड था, मतलब बहुत भीड़ थी. और हमारे अंकल जो थे ना, वो हमको भीड़ से एक जगह से दूसरी जगह सही से ले जा रहे थे. और अचानक ही हम लोगों को अंकल के कुछ फ्रेंड्स मिल गए, और वो फ्रेंड्स चाहते थे कि अंकल थोड़ा टाइम उनके साथ बिताए. ठीक है. Then the third paragraph I'm reading. Uncle asked me whether I would like to look around the fair with Bhaiya till he come back. I was happy to do that. Uncle warned me neither to buy anything nor to go far out while he was away. I promised that I would wait for him. ठीक है. तो अंकल ने बोला कि अभी मैं थोड़ा फ्रेंड्स के साथ होके आता हूँ, एक काम करो, यू जस्ट गो अराउंड विद भैया, भैया के साथ जाओ और देखो फेयर में क्या क्या लगा है, क्या खरीद सकते क्या नहीं खरीद सकते, बट सिर्फ देखना, कुछ खरीदना मत, कुछ लेना मत और बहुत दूर जाना मत, ऐसा उन्होंने समझाया. आई प्रॉमिस दैट आई वुड वेट फॉर हिम. और मैंने भी प्रॉमिस करे कि हाँ हाँ पक्का प्रॉमिस, आई विल वेट फॉर यू, आप नहीं आएंगे तब तक मैं कहीं नहीं जाऊँगा. ओके. देन वॉट हैपेंड. भैया एंड आई वेंट फ्रॉम शॉप टू शॉप, and there were many things I would have liked to buy, but I waited for uncle to return. Then we came to what was called the lucky shop. तो वो लोग ऐसे घूमते रहे, अच्छी अच्छी दुकानों में अच्छी अच्छी चीज़ें देखते रहे. और उसके बाद में उसका मन तो बहुत हो रहा था कि मैं ये भी ले लूँ, मैं वो भी ले लूँ, लेकिन वो ले सकता नहीं था क्योंकि अंकल ने ना बोला था. और उसने भी प्रॉमिस किया कि हाँ कोई नहीं, मैं कुछ नहीं करूँगा, आप आएंगे फिर ही सब लूँगा. सो ही प्रॉमिस दैट आई विल वेट. ओके. तो
फिर क्या हुआ कि वहाँ पे चलते चलते घूमते घूमते वो एक लकी शॉप नाम की दुकान पे पहुंचे, द लकी शॉप। ओके, द शॉपकीपर वॉज नाइदर यंग नॉर ओल्ड, ही वॉज अ मिडल एज्ड मैन, ही सीम्ड नाइदर टू स्मार्ट नॉर टू लेजी, ही वॉन्टेड एवरीबडी टू ट्राई देयर लक। तो जैसे ही वो लकी शॉप पे पहुंचे तो जो शॉपकीपर था वो कैसा था, बहुत यंग भी नहीं था, बहुत ओल्ड भी नहीं था, मिडिल एज्ड आदमी था। और वो चाहता था कि सब लोग अपना लक आजमाए, और वो बहुत स्मार्ट भी नहीं दिख रहा था, बहुत लेजी भी नहीं दिख रहा था, लेकिन चाहता था कि सब लोग उसकी शॉप पे आए और अपना अपना लक आजमाए। देयर वर डिस्क on the table with the numbers from 1 to 10 facing down. All you had to do was pay 50 paisa, pick up any 6 discs, add up the numbers on the disc and find the total. The article marked with that number was yours. तो वो गेम क्या था लकी शॉप में कि 1 से लेकर 10 तक सारे डिजिट्स रखे हुए थे। वो डिजिट्स में से आपको पैसे भरने, पहले तो 50 पैसे भरने के बाद, तब 50 पैसे भी बहुत ज़्यादा होते थे, मतलब 1 रुपया का भी आधा हिस्सा। तो 50 पैसे अगर आप भरोगे ना तो आपको एक चांस मिलेगा। वो चांस में आपको क्या करना है, यू हैव टू पिकअप डिस्क, वो जो रखे हुए नंबर है ना, वो नंबर आपको कोई भी 6 उठाने हैं, 6 नंबर्स उठाने हैं और उसका टोटल करना है। और टोटल करके जो भी नंबर आएगा ना तो वो नंबर वाला गिफ्ट आपको मिल जाएगा। ओके, दैट गिफ्ट विल बिकम योर्स। सो दिस बॉय वांटेड टू ट्राई हिज लक। तो लकी शॉप वाले का ये ट्रिक था कि भाई 50 पैसे ले लो, 6 डिस्क दे दो, 6 डिस्क का टोटल करो, टोटल करने के बाद जो भी आपका नंबर आएगा वो नंबर का जो आर्टिकल होगा, जो भी चीज़ मेरी दुकान में रखी होगी, कुछ भी हो सकता है, तो दैट पर्टिकुलर आर्टिकल विल बिलोंग टू यू, वो मैं तुमको दे दूंगा। दैट वॉज द गेम। अपन वनिता विश्राम मेला जाते हैं ना, वहाँ पे भी होता है, ऐसे नंबर्स लगे होते हैं और कुछ होता है गेम, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, बट मैंने देखा है कि भाई ऐसे नंबर्स वाले होते हैं और गिफ्ट लगता है। तो क्या होता है वो एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, नंबर्स होते हैं लेकिन, एंड वी कैन गेट एनीथिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर गिफ्ट शॉप, लाइक इट्स लाइक प्लेइंग अ गेम, पेइंग समथिंग एंड देन गेटिंग अ गिफ्ट। तो ऐसा वनिता विश्राम में भी लगता है ना मेला, तब अठवा गेट पे तब भी होता है, बहुत सारी जगह पे जहाँ पे भी मेला लगता है वहाँ पे ये शॉप होता ही है। तो ऐसा हुआ। देन वॉट हैपेंड, an old man paid 50 paise and selected 6 discs. He added up the numbers on them and found that the total was 15. Then he was given the article marked with 15. तो एक पहले तो एक बूढ़ा आदमी आया और उसने अपना लक आजमाया। उसने क्या किया ना, 50 पैसे दिए, बोला कि ये मेरे 50 पैसे, तो उसको 6 डिस्क मिली। वो 6 डिस्क सिलेक्ट की उसने और फिर ऐड किया तो आया टोटल 15। और 15 पे जो नंबर था, मतलब जिस आर्टिकल पे 15 लिखा हुआ था, वो आर्टिकल इसको वो शॉपकीपर ने दे दिया। तो उसको क्या मिला ओल्ड मैन को, लेट अस सी। एंड द ओल्ड मैन वॉज हैप्पी कि भाई उसका अलग काम कर गया, उसको कुछ तो मिला, ऐसे करके। So the old woman's total was 15 and he got a beautiful clock. But the old woman did not wanted a clock and the shopkeeper obliged him to by buying it back for rupees 15. The old man went away pleased. तो जो ओल्ड मैन था उसको वॉच मिली बराबर, लेकिन उसको वॉच चाहिए नहीं थी, तो 15 रुपीज़ की थी। तो वो जो शॉपकीपर था उसने बोला ठीक है 15 रुपीज़ में आप मुझे बेच दो। तो उसने फिर से 15 रुपीज़ ओल्ड मैन को दे दिए और वो वॉच उससे ले ली। Then what happened? Then a boy a little older than I tried his luck. He got up a comb with worth 25 paise. The shopkeeper looked neither happy nor sad. He bought the comb from the boy for 25 paise. The boy tried his luck again. He now got a fountain pen worth 3 rupees. Then he tried a third time and got a wristwatch worth 25 rupees. When he tried again, he got a table lamp worth more than 10 rupees. The boy was happy and went away with a smile and a good deal of cash. Okay, तो ये जो शॉपकीपर था ना, अगर नंबर लगता है और आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती और वो नंबर लग गया, तो वो क्या करता था, आधी कीमत में वापस ले लेता था। जैसे कि 30 पैसे आपने भरे तो 15 पैसे में वो चीज़ वापस ले लेता था और रिचेंज करके नया देता था, या एक और बार लक चांस आजमाने के लिए कहता था। ऐसे सब वो करता था। कौन? शॉपकीपर। ओके, I wanted to try my luck too. I holded at Bhaiya. He encouraged me. I paid 50 paisa and took 6 discs. My luck was not too good. I got 2 pencils. The shopkeeper bought them from me for rupees 25.
sorry, for 25 paise. I tried again. This time I got a bundle of ink, also of little value. The shopkeeper brought that 2 or 25 paise. I took a chance for the third time and still the luck was not with me. तो जो लड़का था रशीद करके, उसने अपना लक आजमाने की सोचा. एंड देन व्हाट डिड ही डू, ही वेंट टू द लकी शॉप एंड ही स्टार्टेड पेइंग. पहले 50 पैसे दिए और अपने डिस्क उठा के टोटल किया तो उसको खाली 2 पेंसिल ही मिली, बराबर. सो ही वॉज फीलिंग वेरी सैड. तो शॉपकीपर ने 25 पैसे उसको बोले कि पेंसिल मुझे भेज दो, मैं 25 पैसे दूंगा. ओके, तो फिर उसने वो पैसे दे दिए. देन व्हाट हैपेंड, आई हैड होप्स ऑफ winning big prize and continued to try my luck again and again, paying 50 paise each time, but every time I got to trifle. Trifle मतलब an object of low value, सस्ता मस्ता सा उसको कुछ भी मिल जाता था जब वो अपना लक आजमा रहा था, बराबर. At last I was left only with 25 paise. Again the shopkeeper showed his kindness and he said, could I help you play, or could I either play. So what is it? It is said that कि भाई वो अपना लक आजमा रहा था लड़का, लेकिन उसको सब छोटी मोटी चीज़ें मिल रही थी, बड़ी चीज़ें उसको मिल नहीं रही थी, और उसको कोई बड़ी चीज़ चाहिए थी, इसलिए वो बार बार पैसे दिए जा रहा था. और जो नहीं पसंद वो शॉपकीपर उससे आधे रुपए में वापस भी ले रहा था, ठीक है. लेकिन रशीद का लक इतना अच्छा नहीं था. वो कितना भी ट्राई कर रहा था लेकिन उसको कोई बड़ी चीज़ मिल नहीं रही थी. उसको छोटी मोटी ट्रफल, ट्रफल मतलब आर्टिकल ऑफ लोअर क्वालिटी, मतलब जो चीज़ अच्छी नहीं होती, क्वालिटी वाली अच्छी नहीं होती, उसको ट्रफल कहते हैं. तो उसको कुछ ना कुछ सस्ता मस्ता सा ही मिल रहा था. एट लास्ट आई वॉज फेड अप विथ लेफ्ट विथ ओनली 25 पैसे. अगेन द शॉपकीपर शोड हिज काइंडनेस. फिर जो शॉपकीपर था उसने कहा कि चलो 25 पैसे लास्ट है तुम्हारे पास, तो एक काम करो, एक गेम खेल लो और फिर बाद में हम अपना अकाउंट सेटल करेंगे. What happens next in the story? Does he has the luck to win a big gift? So let us see tomorrow what happened in the lucky shop. क्या हुआ वहाँ पे, क्या लड़का कुछ बड़ा कुछ अच्छा जीत पाया? So that all we'll be discussing tomorrow, students. That's all for today. Do complete your notebooks, keep them up to date. See you all tomorrow.